এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এআইএমআইএমৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইচি এই মুহূৰ্তত লোকসভাত নিজৰ ভাষণ ৰাখিছে আৰু নিজৰ ভাষণত আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে দিয়া জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা তেওঁক নালাগে আৰু ওৱেইচিয়ে দাবী কৰিছে যে মৰিবলৈ মই ভয় নকৰো আৰু তেওঁ কৈছে যিসকলে ওৱেইচিক গুলিয়াইছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত ইউএপিএ লগাওক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ক্লাইমেট ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত জনাই আছো মোক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা নালাগে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি এইদৰে লোকসভাৰ মজিয়াত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে মুক্তভাৱে মই জীয়াই থাকিব বিচাৰো ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য কৰা হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ ওপৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই তেখেতক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা দিছিলে কিন্তু নিৰাপত্তা প্ৰত্যাখ্যান কৰি তেওঁ কৈছে যে মৃত্যুক লৈ মই ভয় নাখাওঁ আমি সকলোৱে এদিন এইখন পৃথিৱীৰ পৰা যাব লাগিব বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে সদনৰ মজিয়াত দিয়া তেওঁ নিজৰ ভাষণত কৈছে যে মই এইখন দেশতেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছো আৰু এইখন দেশতেই এদিন আমি মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব এইদৰে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি এই মুহূৰ্তত উদাত্ত ভাষণ দিছে আৰু ওৱেইচিয়ে কৈছে যে যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব ঔৰংগাবাদৰ মাটিতেই মোক কবৰস্থ কৰা হ'ব মোক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা নালাগে দেশৰ দৰিদ্ৰ আৰু সংখ্যালঘুৱে যেতিয়া নিৰাপত্তা পাব ময়ো নিৰাপত্তা পাম বুলি এই মুহূৰ্তত ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা সদনৰ মজিয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে দেশৰ দৰিদ্ৰ যদি বাচি থাকে আছাদুদ্দিন ওৱেইচিও বাচি থাকিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে মোক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা নালাগে বুলি ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা বিচৰা নাই আছাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ লগত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পাছত তেওঁ কৈছে মোক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা নালাগে কিন্তু মোক এ কেটেগৰীৰ নাগৰিক বনাওক ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যাতে আপোনাৰ আৰু মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ড সমপৰ্যায়ৰ হয় যদিহে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰ সংখ্যালঘু বাচি থাকে ময়ো বাচি থাকিম বুলি ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে এজন সাংসদক 6 ফুট দূৰত্বৰ পৰা কোনোবাই গুলি চলাব পাৰে এইখন দেশত সেই সকলৰ ওপৰত ইউএপিএ লগাবলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু কৈছে যে গুলি চলোৱা সকললৈ ভয় খাই মই মনে মনে নাথাকো বুলি ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে গুলি চলোৱা লোকসকলৰ ওপৰত ইউএপিএ লগাওক বুলি সদনৰ মজিয়াত মোদী চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে তেওঁ কৈছে আপোনালোকে দিয়া জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছো ধৰ্ম সংসদত মোৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক কথা কোৱা হৈছিল হৰিদ্বাৰ ৰায়পুৰ আৰু প্ৰয়াগৰাজত ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে তদন্ত কৰক তাৰ পিছত ওৱেইচিয়ে ক'লে যে বৰ্তমান দুখন ভাৰত আছে ওৱেইচিৰ ভাষণত পুনৰবাৰ দুখন ভাৰতৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ওৱেইচিয়ে কৈছে যে এখন ভাৰত প্ৰেমৰ আৰু আনখন ঘৃণাৰ ভাৰত এই যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে একাংশ যুৱকক ৰেডিকেলাইজ কৰা হৈছে তেওঁলোকক ধৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সাম্প্ৰদায়িক বিক্ষোভাস্ম বিয়পোৱা হৈছে এয়া চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক হৰিদ্বাৰ ৰায়পুৰ আৰু প্ৰয়াগৰাজৰ ধৰ্ম সংসদত মোৰ বিৰুদ্ধে কি কথা কোৱা হৈছিল হেয়া চৰকাৰে জানে ধৰ্মৰ নামত যিসকলে বিক্ষোভাস্ম বিয়পাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক এয়া ওৱেইচিয়ে এই মুহূৰ্তত সদনৰ মজিয়াত দিয়া ভাষণ লোকসভাৰ মজিয়াত এইদৰে সৰব হৈ পৰিল এআইএমআইএমৰ সাংসদগৰাকী আৰু তেওঁ ক'লে যে চৰকাৰে দিয়া জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা তেওঁক নালাগে যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক ইউএপিএ লগাওক দেশৰ দৰিদ্ৰ আৰু সংখ্যালঘুৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক এই মুহূৰ্তত ওৱেইচিৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে এই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं हम सबको जाना है इस दुनिया से बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों को अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर आपकी चिंता हमें है ना सर मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप
मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ प्रदेश में इक़्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में, उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर, खत्म सर, मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और
इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर, इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर, इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ,